Welcome back, student. Today we will discuss how to solve definite integral. Before discussing definite integral, let me discuss some basic of indefinite integral. Indefinite integral. So we know cos x dx. Integration of cos x dx equal to what? Sin x plus integration constant c. This one is known as a indefinite integral. If we put lower and upper limit, this one is lower limit. Suppose we want to integrate from 0 to pi by 2, then 0 is lower limit and pi by 2 is your upper limit. In case of definite integral, what we write? Integrate from 0 to pi by 2 cos x dx. So we know integration of cos x is sin x, so we will write sin x or limit from 0 to pi by 2. So first we will put upper limit, that means in place of x we will put pi by 2 sin pi by 2 minus lower limit sin 0. Sin pi by 2 is 1, sin 0 is 0, that means 1. So value of integration cos x from 0 to pi by 2 would be 0 to pi by 2. So I am going to discuss properties of definite integral. So this property is known as first property. What it says that the value of definite integral depends on limits and not on the variable of integration. You can see in the LHS we are integrating with respect to x, and in RHS I am integrating with respect to t. To prove this one, how to prove it? Let integration of fx dx, that is phi x, right? This one, suppose I am integrating 0 to pi by 2 without limit, that is sin x. Here sin x is your phi x. After integration it is phi x. So LHS would be integration a to b fx dx. So integration of fx dx is phi x. So let me write phi x limit a to b. क्या करेंगे? x की जगह लिमिट रख दोगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो phi b minus phi a. That is your LHS. Now RHS a to b ft dt. That means here I am integrating with respect to t. Let integration of ft dt that is equal to phi t. इसका इंटीग्रेशन किया, क्या आया इसका? phi t. Then this will become what? a to b ft dt that is equal to इंटीग्रेशन इसका phi t हो गया. लिमिट किसकी हो गई? ये t की हो गई, a to b. t की जगह अब अपर लिमिट रखोगे माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो गया? अपर लिमिट t की जगह b, phi b minus phi a. You can see both value are same. This LHS as well as RHS. So it proved, यही सिर्फ प्रूव करना था कि डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? लिमिट पर, वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती, चाहे आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें या t के रिस्पेक्ट में. दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 says the interchange of limit changes the sign of the integration. That means if, let me first show with the example again, 0 to pi by 2 cos x, that is same equal to minus, let me interchange lower and upper limit, pi by 2 0 cos x dx. So what I have done, मैंने सेम इंटीग्रेशन करा है cos x का,
लेकिन यहाँ लिमिट 0 to π/2 तो यहाँ पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंज कर दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट में चेंज कर दिया तो क्या हो गया, माइनस साइन हो गया, ये मतलब है। तो इसको देखो सॉल्व करो दिस वन, तो इसका इंटीग्रेशन cos x का sin x होता है, तो क्या होगा 0 to π/2। और इधर सॉल्व करोगे इसको तो अगेन sin x लिमिट क्या हो गया π/2 to 0। इस साइड में यहाँ लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x की जगह π/2 रखो अपर लिमिट में माइनस लोअर लिमिट sin 0, दैट इज इक्वल टू इसमें अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट π/2 sin π/2। sin π/2 is 1, sin 0 is 0, sin 0 is 0, sin π/2 1। तो क्या वैल्यू आ गई 1 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू इसमें क्या माइनस साइन माइनस 0 माइनस 1, यू कैन सी 1, इधर से क्या आ गया माइनस माइनस प्लस। तो LHS and RHS both are same, that means interchanging of limit changes the sign of the integration, that's all. Now to prove this, what I am going to write, let fx dx equal to phi x. LHS, what is LHS? A to B fx dx. What I can write it, integration of fx dx equal to phi x, तो phi x lower limit is b, upper limit is c, lower limit is a, upper limit is b, and we can write, let me put the limit phi b minus phi a. Now RHS क्या है, माइनस दिस वन इज योर RHS, माइनस b लिमिट उल्टा कर दिया है fx dx। हम इस चीज को क्या लिख चुके हैं यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन phi x तो लिख दिया, दैट इज इक्वल टू माइनस phi x लिमिट ये b और ये a। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट अपर लिमिट एंड phi a माइनस लोअर लिमिट phi b, माइनस साइन को अंदर करोगे क्या हो जाएगा माइनस phi a माइनस दिस माइनस और माइनस प्लस phi b, वैल्यू क्या आ गई phi b माइनस phi a। तो यहाँ से देख सकते हो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ आर सेम, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, सो द इंटरचेंज ऑफ लिमिट चेंज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओनली लेट मी प्रूव दिस प्रॉपर्टी थर्ड, a to b fx dx दैट इज इक्वल टू a to c, लोअर लिमिट ये देखो सेम है, बीच में हमने इंटरमीडिएट क्या ले लिया c यहाँ तक आया, फिर c से शुरू की, अपर लिमिट क्या हो गई b, यहाँ पर b भी सेम, तो बीच में ये है, तो हम क्या कर आपको शो कर सकते हैं 0 to 2 x dx दैट इज इक्वल टू 0 to 1 x dx प्लस 1 to कहाँ तक 2 तक ले जाना है x dx। LHS इसका ले लेते हैं, LHS क्या है 0 to 2 x dx, इंटीग्रेशन x पावर n क्या होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, यानी x पावर 1 है तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, लिमिट 0 to 2, अपर लिमिट 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, that means 4 divided by 2, that is 2। RHS देखो, let me see the RHS, 0 to 1 x dx plus 1 to 2 x dx, इंटीग्रेशन इसका हम पहले बता चुके हैं x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 1 प्लस अगेन x स्क्वायर बाई 2 1 to 2, तो इसका देखो क्या हो गया 1/2 कॉमन लिया, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, इसमें 1/2 कॉमन है, इसमें क्या हुआ अपर लिमिट 2 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 स्क्वायर, क्या आ गया 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई 2 1/2 रहा, प्लस 1/2 ये
2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1, क्या हो गया 1/2 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स इसको ऐड करोगे दोनों को तो क्या होगा 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2। तो LHS इक्वल टू RHS, तो वही इसमें कह रहा है। तो अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज लेट मी प्रूव दिस। हाउ टू प्रूव? लेट fx dx इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू 5x। जैसे यहाँ पर fx क्या है, x है, dx इसका इंटीग्रेशन हमने किया x² डिवाइड बाई 2, तो वही है इंटीग्रेशन इतना है। तो LHS क्या हो जाएगा? LHS क्या हो जाएगा? a to b fx dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज 5x, तो 5x इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट फ्रॉम a to b, लिमिट लगा दो क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट मीन्स 5b माइनस 5a, ये हो गया LHS। नाउ RHS a to c fx dx plus this one is your RHS c to b fx dx। हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज 5x, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 5x, तो 5x इसका लिमिट क्या है a to c प्लस इंटीग्रेशन इसका क्या है 5x, लिमिट क्या है c to b। अब लिमिट लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा 5c माइनस लोअर लिमिट 5a, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। अब इसमें आ जाओ अपर लिमिट x की जगह b रखा माइनस, तो 5b हुआ माइनस लोअर लिमिट x की जगह c, तो 5c। तो यू कैन सी 5c और 5c कैंसिल हो गया, बिकॉज ऑफ प्लस एंड माइनस, तो क्या बचा 5b माइनस 5a दैट इज सेम एज LHS, ये वाला। तो यही प्रूव करना है, इट प्रूव, and we have already shown by taking an example over here, this one. Now fourth property, that is very important property, fourth property is 0 to a fx dx equal to 0 to a f of a minus x dx. So what I am going to write is, let, to prove this, let a minus x equal to t। RHS को मैं ले रहा हूँ, RHS को प्रूव करने ले रहा हूँ। तो RHS को क्या होगा, देखो यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, x डिफ्रेंशिएट करोगे, a का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, dx का dx हो गया, t का dt हो गया, तो यहाँ से dx इक्वल टू माइनस dt हो गया। अब इसकी हमें लिमिट चेंज करनी है, लिमिट हमारी x के फॉर्म में हमें किस में चेंज किया है t में, तो लोअर लिमिट 0 है, तो व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा a देखो a माइनस 0 x दैट इज इक्वल टू t, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो गया a, लोअर लिमिट हो गई, क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ t, व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू a, व्हेन x इक्वल टू a अपर लिमिट a x इक्वल टू a, यहाँ वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा दैट इम्प्लाइज a माइनस x a दैट इज इक्वल टू t, दैट मीन्स t इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, जब x इक्वल टू हमारा 0 है तब t इक्वल टू a है, जब लोअर लिमिट 0 है तब t की लिमिट क्या हो जाएगी a, जब x इक्वल टू a जो अपर लिमिट है तो t की लिमिट क्या होगा 0, तो नहीं RHS क्या हो गया आपका, इसको एक बार लिख लेता हूँ 0 to a f a माइनस x इंटू dx। अब हमने क्या किया a माइनस एक्स इक्वल टू t, तो देखो क्या होगा एफ टी, dx की जगह क्या होगा माइनस dt, ये वाला। अब देखो लिमिट हमें t के रूप में लिखना है, तो अब लोअर लिमिट इसमें दिया था x की, हमें किस में लगना है t के फॉर्म में, व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 t इक्वल टू a, तो यहाँ a हो गया। अब x इक्वल टू a अपर लिमिट है, तो t इक्वल टू क्या है 0,
ये अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट। तो यहाँ क्या हो गया 0। अब आपको प्रॉपर्टी अभी मैंने पीछे डिस्कस किया है, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 2 कहता है इट सेज a to b f(x) dx that is equal to minus b to a f(x) dx। तो यहाँ पर हम क्या है, ये वाली चीज़ हमारी लिखी है a to 0 ft dt माइनस ये वाला बाहर ले लिया। अब हमें लिमिट इसको प्रॉपर्टी की यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस हटा दिया तो लिमिट ये चेंज हो जाएगी, लोअर वाली अपर हो जाएगी, अपर वाली लोअर हो जाएगी, 0 to a ft dt। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से क्या था, प्रॉपर्टी फर्स्ट अगर लगाओगे, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल हैज़ नो इफेक्ट ऑन वैल्यू। तो अगर हम चाहे f(x) dx लिखें, चाहे ft dt रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 वी कैन राइट दिस वैल्यू है 0 to a f(x) dx, दैट इज योर LHS। अब इस